Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the structure of nephron. We said that nephron, which is consisting of the glomerulus and the renal tubule. The glomerulus was a network of capillaries, whereas renal tubule begins with the cup-shaped structure known as Bowman's capsule, which will be enclosing the glomerulus, and then after there were proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule, which ended up in the collecting ducts. All such collecting ducts are going to converge at the region of the renal pelvis, and from the renal pelvis the filtrate, or you can say the urine, will be entering into the ureter. So as we know that nephrons, they perform the function of formation of the urine. नेफ्रॉन का जो मेन काम होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन. पर यूरिन फॉर्मेशन जो है उसकी एक प्रोसेस है, राइट. इट इज नॉट जस्ट हाउ द फॉर्मेशन इज गोइंग टू अकर, but there are sequential steps that should occur for the formation of the urine. So in today's lecture we are going to discuss the same about the topic of urine formation. So urine formation is the major function of the nephron and it consists of 3 steps. Okay, so urine formation, it consists of 3 steps, and these 3 steps are, the first one is known as glomerular filtration. The first step of urine formation is known as the glomerular filtration. Now, glomerular filtration, what is this process of filtration? The blood which is entering into the renal or through the renal artery will be entering into the efferent arteriole, and from the efferent arteriole it will be reaching each and every capillary, that is glomerular capillary. So these glomerular capillaries will be performing the function of filtration of the blood. क्या होता है इन capillaries में? ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, क्योंकि जब कैपिलरीज में से ब्लड पास होता है तो कैपिलरीज की जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है. इसीलिए जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ये सारे ही सब्सटेंसेस इजीली दे कैन मूव out of the blood capillary. Okay, so here the filtration, glomerular filtration, is the filtration of blood, filtration of blood performed by glomerular capillaries. The filtration of blood performed by glomerular capillaries is known as glomerular filtration. मतलब ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होने वाला है, राइट. ब्लड क्यों फिल्टर होने वाला है? बिकॉज वी नीड टू रिमूव सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड विच आर अनवांटेड. जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट है तो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट तभी होगा जब वो फिल्टर होगा, राइट. सो फिल्ट्रेशन जो है वो कौन करता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज करते हैं, और इसीलिए इस स्टेप को कहा गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. कितना ब्लड फिल्टर होता है ये भी समझना जरूरी है. सो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered every minute. This is very important. About 1100 to 1200 ml of blood is filtered every minute. 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है, मतलब कितना ब्लड आपके किडनीज में एंटर होके एग्जिट होने वाला है, ये कह सकते हैं हम, राइट. तो दैट इज 1100 to 1200 ml of blood
is going for filtration into your kidneys every minute. So we can say that this is nearly 1/5 of the volume of blood pumped by heart every minute. So that is 1/5 volume of blood pumped by heart every minute. Why I am mentioning this? क्योंकि हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर्स, राइट? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है दैट कार्डियक आउटपुट, राइट, क्या होता है? 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज पंप्ड आउट एवरी मिनट. मतलब हमारी बॉडी का टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ही 5 लीटर्स है. तो 5 मिनट के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी का पूरा ही ब्लड हार्ट से पंप आउट होके बाहर आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर किडनीज 1100 टू 1200 ml ब्लड पंप कर रहे हैं, सॉरी फिल्टर कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि हार्ट ने जो पंप किया 5000 लीटर, उसमें से नियरली 1/5 जितना वॉल्यूम कितने टाइम में फिल्टर हो जाता है? सिर्फ 1 मिनट में. इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज गोइंग टू बी फिल्टर्ड आउट फ्रॉम योर kidneys. Okay, so that is very important to know. Now this filtration is going to occur through the three layers of the filtration membrane, right? So filtration occurs through filtration is carried out by the filtration membrane. अब फिल्ट्रेशन जो है वो कहां से होने वाला है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से. तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होता है और वो कहां पे प्रेजेंट है? तो पहला ही जो मेम्ब्रेन आएगा वो क्या होगा कि देयर विल बी स्पेशलाइज्ड मान लीजिए ये है बाउमेन्स कैप्सूल. ठीक है, तो बाउमेन्स कैप्सूल के 2 एपिथेलियल लेयर्स हैं. ठीक है, फिर यहां पे है ग्लोमेरुलस, एंड हियर विल बी योर इफरंट आर्टेरियल. तो फिल्ट्रेशन को कितनी मेम्ब्रेन्स, फिल्ट्रेशन के लिए कितने लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा? Blood will be present in this capillaries. So very first thing they have to cross is the endothelium of the blood vessels. क्योंकि blood vessels जो होती है उनकी लाइनिंग को क्या कहा जाता है? एंडोथीलियम. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या आएगा? एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ blood capillary. The very first layer will be the lining of the blood capillaries. So we can say endothelium of the blood capillaries. Endothelium मतलब blood capillary की जो wall है, जो boundary है, that itself. The second is the space between the capillaries, that is the glomerulus and the Bowman's capsule. This is known as the basement membrane. The space between the endothelium of the blood capillaries and the Bowman's capsule is called the basement membrane. And the third layer will be the epithelium of Bowman's capsule. Epithelium of Bowman's capsule. तो फिल्ट्रेशन करने के लिए, ब्लड को फिल्टर होने के लिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा. और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आ जाता है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके बाद आ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड लास्टली देयर इज एपिथेलियम ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल. अब ये जो एपिथेलियम होता है बाउमेन्स कैप्सूल का, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें कहा जाता है पोडोसाइट्स. There are specialized cells present which are known as the podocytes, and these podocytes have minute spaces between them. Podocytes have
स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, क्योंकि स्मॉल स्पेसेस होगा तो फिल्ट्रेशन एफिशिएंटली होगा। अगर वो कंप्लीटली मेम्ब्रेन से कवर्ड होता तो शायद फिल्ट्रेशन इतना रैपिडली होता नहीं, राइट। फिल्ट्रेशन को रैपिड करने के लिए यहाँ के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स, और ऐसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स वाले एपिथेलियल सेल्स को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट्स। स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम व्हिच इज नोन एज filtration slit, and through the filtration slits only the process of filtration is very much rapid and very much efficient, right? अगर 3 इंटैक्ट वॉल्स होती तो शायद फिल्ट्रेशन इतना रैपिडली होता नहीं। इसलिए जो भी ब्लड है, प्लाज्मा है, जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है प्लाज्मा के अंदर, ये फिल्टर होके कहाँ पे आने वाले हैं? दे आर गोइंग टू कम इन द ल्यूमेन ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेशन का मतलब ही ये है कि ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आएगा, कैपिलरीज में मूव होगा, कैपिलरीज में से through the filtration membranes it will cross and enter into the lumen of the Bowman's capsule, right? This process is known as filtration. तो हमने ये तो देख लिया कि कितना ब्लड एंटर हो रहा है फिल्टर होने के लिए, तो कितना है 1100 to 1200. This is not the value for one nephron, it is for all the nephrons collectively, okay? सारे ही nephrons के collective amount ये है 1100 to 1200 ml ब्लड एंटर हुआ, किसके लिए? फिल्टर होने के लिए। पर फिल्टर होने के लिए एंटर हुआ, उसमें से फिल्टर कितना होगा? सो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट ऑब्टेन पर मिनट विल बी नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट obtained per minute by all nephrons of both kidneys. All the nephrons of both the kidneys is known as glomerular फिल्ट्रेशन रेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर में। आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए। 1100 to 1200 is what? It is the amount of blood that goes for filtration। जो फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है वो कितना है? 1100 to 1200। पर उसमें से फिल्टर होके ल्यूमेन ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल में कितना आ रहा है? ओनली 125 ml per minute, and that is 180 liters in a day. What is it? 180 liters. अब ऐसा मत समझना कि हमारी बॉडी में 180 लीटर्स ब्लड है, ऐसा नहीं समझना है यहाँ पे। 180 लीटर्स इसीलिए क्योंकि ये जो है that is going to be repeatedly blood is going to enter into the kidneys. Okay, it's not going to happen that during only one time in a day the blood is going for filtration. That is wrong. Continuous filtration होता ही रहता है, और जैसे recurrent filtration होता रहता है 125 ml जितना फिल्ट्रेट मिलेगा हमें, ये क्या होगा? यहाँ पे हमें मिलेगा फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट कितना होगा? ये फिल्ट्रेट होगा 125 ml पर मिनट। मतलब अगर पूरे दिन के लिए देखा जाए तो 180 लीटर्स जितना फिल्ट्रेट होगा सिर्फ एक दिन में, ठीक है? तो अब 180 लीटर्स है, तो 180 लीटर्स में से हमारा डेली जो यूरिन फॉर्म होता है वो कितना होता है? 1.5 लीटर्स, ठीक है? वी यूरिनेट अबाउट 3 to 4 or 5 times in a day, and that is making how much? Only 1.5 liters of urine formation. तो 180 लीटर्स फिल्ट्रेट है और यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर, तो मतलब 99% चीजें क्या हो रही है? रीअब्सॉर्ब हो रही है। रीअब्सॉर्ब मतलब वापस किस में जा रही है? हमारे
ब्लड में। इसीलिए यूरिन फॉर्मेशन के सेकेंड स्टेप को कहा जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इट इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आप समझिए यहां पे, if the filtrate is 180 liters in a day and hardly we expel out 1.5 liters of urine, मतलब फिल्ट्रेट और यूरिन में इतना बड़ा डिफरेंस है, दैट इज 99% जितना फिल्ट्रेट तो वापस क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब ही हो जाता है, राइट। द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म, अमाउंट ऑफ यूरिन इज 1.5 liters, thus 99% of filtrate gets reabsorbed. 99% of the filtrate is going to be reabsorbed. Reabsorbed मतलब कहां पे वापस जाना है, in the nearby capillaries, क्योंकि पीसीटी के आजू बाजू भी क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज तो थी ही, जिन्हें हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो जब यहां से फिल्ट्रेट पास होता है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में सम ऑफ द फिल्ट्रेट इज गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब। रीअब्सॉर्ब होके वापस किस में जाता है, हमारे ब्लड में। तो क्या रीअब्सॉर्ब होता है, तो मैक्सिमम ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर। उसके बाद जो चीज बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं होती, कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाती है, वो है ग्लूकोज। हमारी बॉडी में से यूरिन में ग्लूकोज निकलना मतलब डायबिटीज की कंडीशन कहलाई जाती है। इसीलिए देयर इज नॉट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेल्ड आउट, बट एज ग्लूकोज इज एज ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए वो इमीडिएटली फिल्टर तो हो जाता है और ल्यूमेन में आ जाता है ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल, पर वो फिल्ट्रेट में एलिमिनेट नहीं होता, इंस्टेड क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सो वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सम नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, some nitrogenous products are reabsorbed passively, are reabsorbed actively, right? So there are going to be some substances जो active absorption से absorb होंगे, कोई ऐसे होंगे जो passive absorption से आ जाएंगे। Most of the water जो है, water passively पहले absorb होता है, so I am mentioning over here separately, water is being uptaken by passive absorption। फिर ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, ये सारे सब्सटेंसेस एक्टिव और पैसिव, बट एनी ऑफ द मीन्स दीज आर गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब। इसके अलावा एसेंशियल वाइटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में, जिन्हें एलिमिनेट नहीं करना है, तो ऐसे वाइटामिन्स जो होंगे, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसीलिए रीअब्सॉर्प्शन का स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The third step of the urine formation is known as the tubular secretion. Is known as tubular secretion. So there are some substances which are going to be secreted into the renal tubule. So substances like H plus, K plus are secreted in the renal tubule। secreted मतलब यहाँ के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे कि H प्लस है, तो अगर हमारे ब्लड में H प्लस ज्यादा है तो क्या होता जाएगा, ब्लड का पीएच बहुत ही ज्यादा लो होता जाएगा, तो हमें एक्सेसिव H प्लस की जरूरत नहीं है। तो H प्लस है, K प्लस है, ऐसे नॉन एसेंशियल मटेरियल है, यूरिया है, इन सब सब्सटेंसेस को अंदर पंप कर दिया जाता है, किसमें, into the renal tubule। So tubular secretion is very important for maintaining, so maintains the ionic and water balance
ओके हमारी बॉडी में आयनिक और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। कई बार जो अमोनियम आयंस होते हैं उन्हें भी सिक्रीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। अगर जो भी नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस है जो पीएच को बदल देती है, ऐसी सब सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर दिया जाता है रेनल ट्यूब्यूल में। तो यूरिन फॉर्मेशन के ये 3 स्टेप्स हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होने के बाद रीअब्सॉर्ब हो जाता है जो भी एसेंशियल है, क्योंकि पानी जो है 180 लीटर्स में मैक्सिमम तो वाटर होने वाला है, तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाटर है, ग्लूकोज है, इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स है, वाइटामिन है, इन सब चीजों को बॉडी फिल्ट्रेट में लूज करती नहीं है, इसलिए इन सबको वापस क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को अंदर रेनल ट्यूब्यूल में सिक्रेट कर दिया जाता है, एंड दैट इज द थर्ड स्टेप फॉर ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो दैट वाज द 3 स्टेप्स ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन. In the next lecture, we are further going to continue with the function, that particularly what is getting reabsorbed and what is getting secreted in different parts of renal tubule. What we are going to discuss that what are the substances that are reabsorbed and what are the substances that are secreted in different parts of renal tubules, that we are going to discuss in the next class.